अगर मेरे ग्रेड्स जानना चाहते हो तुम लोग, which I think एक कॉमन क्वेश्चन होता है, वो ये था कि आई हैड B plus in cat 1, I had a B in cat 1, A in cat 2 and B plus in cat 3, और ओवरऑल सेमेस्टर की एंडिंग A से हुई थी. So that should give you an idea. So basically, the simplistic way to approach forensics, at least in Cat 2, is कि you divide it into blocks. अब I don't know तुम लोग के live lectures हैं या pre-recorded हैं और how they're going about it, but हमारे pre-recorded थे सारे और मर्जी थी कि आपको करना है, मतलब if you want to watch those तो कर लें. Dr. Samyuddin is good, pretty good with his lectures. उनके usually lectures are short. उनकी मैंने आई थिंक एक या दो वीडियोस देखी थी थ्रू आउट 3 कैट्स प्लस सेमेस्टर में. सो दैट्स वन थिंग. बाकी हमारे पास स्लाइड्स डाउनलोड की थी, सो वी जस्ट डाउनलोडेड आवर स्लाइड्स. सो फॉर कैट 2 यू यूजुअली डिवाइड योर, लोगों का ये लिखना है तो तुम लिख ही सकते हो. यू यूजुअली डिवाइड योर कैट 2 का कंटेंट इनटू 3 large blocks, and that's the way to approach it. So you divide it into traumatology, personal identity, and special toxicology. So ये तीन तुम्हारी बड़ी बड़ी ब्लॉक्स होती हैं, एंड जो स्लाइड्स होती हैं या जो भी तुम तो जिस तरह पढ़ रहे हो तुम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को सुनाता हो. जैसे स्लाइड्स फर्स्ट लो रीजनल इंजरीज की हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हैं, ब्लास्ट इंजरीज हैं, फायर आर्म इंजरीज हैं, regional injuries in the brain, yes, spinal cord. So you put all of that into traumatology. Then you have your cardiac poisons, corrosive poisons, vegetative poisons, animal poisons, Platura streaching. ये सब तुम डाल दोगे स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में. एंड जो रह गया है वो फिर पर्सनल आइडेंटिटी होगी. पर्सनल आइडेंटिटी में तुम सबकी मतलब एज डिटर्मिनेशन एंड डैक्टिलोग्राफी एंड ये वाले टॉपिक्स आते हैं. So now that if you have a fair idea on how you divided it, then you approach it. So अब मैं traumatology कर रहा हूँ, so it's easier for me to just do things related to trauma, rather than कि मैं आज injuries related to blast पढ़ रहा हूँ, फिर मैं next day vegetative poisons पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उन topics आपस में कोई link नहीं है. So it's better to do similar topics together rather than doing different topics together, क्योंकि then you usually don't have an idea, क्योंकि slides की arrangement हमारे पास भी कोई अच्छी नहीं थी. तो हमारी प्राइमरी कंप्लेंट हमारे बैच की थी कि यार स्लाइड्स पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि सेंस बन नहीं रहा हूँ स्लाइड में क्या कर रहे हैं. और आई थिंक तुम एचओडी जो कि डॉक्टर खुद से उनकी स्लाइड्स पता नहीं फॉर सम रीजन कैपिटल में होती हैं, तो एटलीस्ट पर्सनली मेरे लिए दे वर रियली अनोइंग टू लुक एट. सो दैट्स, आई डोंट नो इफ इट occurs to you guys, but that's one reason. So usually you bunch up your slides all together and then you go about it. I had a list of topics जो तुम लोगों की मुझे मिली थी for last week. So उसके अंदर I think cardiac poisons थे. So I think I just go about on how to do those particular topics right now, क्योंकि मैं extra topic explain करूँगा तुम लोगों को समझ नहीं आएंगे. और अगर तुम लोगों ने पढ़े हुए topics तो that's better, because that will give you a more better representation on how to do them. अगर नहीं पढ़े हुए तो you technically won't be able to understand कि मैं क्या कह रहा हूँ. यहाँ पर at least अगर slides देखी है ना, तो you'll understand better. So I think cardiac poisons में, which is special toxicology, you have 5 major poisons, and 5 major poisons नहीं, fat protein वगैरह are not technically poisons, but 5 major poisons हैं. उसके अंदर you divided according to, this applies to all 5 of them. So you divided into signs and symptoms, physical examination, toxicity, treatment plan, differential diagnosis अगर है या नहीं है, postmortem and fatal period. Fatal period, it's not necessary, but अगर तुम लोगों का वाइवा हो जैसे हमारा कैट तुम लोगों का पूछ सकते हैं, because you're dealing with poisons. So skip करना है कर लेना, नहीं करना है ना करो, because again it's fatal period is just like घंटे याद रखो. So that's the particular gist when you come to the cardiac poisons. It's again signs and symptoms, physical examinations, toxicities, treatments, differential diagnosis. You don't need to particularly go into high details of क्या कैसे हो रहा है, just minor. जैसे signs and symptoms में majority poisons जब तुम पढ़ोगे, including sulfur and cyanide, it's based over nausea, severe vomiting, diarrhea. So rather than those, वो एक base बना लो क्या nausea, vomiting, diarrhea हर में हो रहा है. अगर नहीं आ रहा जवाब, then you go for it. Try to remember specific signs and symptoms. जैसे digitalis purpura है, it's a cardiac poison. So
it can lead to conduction defects. So that's how you remember specific parts. ये पूछते हैं कि यार digitalis purpura का specific हो. Then active principles होते हैं in some of the poisons, so you need to remember कि वो active principles क्या है क्योंकि तुमसे पूछ सकते हैं. Again, Viva, this is more Viva based, but theory में भी आ सकता है कि anti arrhythmia और a patient and he has ingested a poison. और तुम्हें list दी हुई है 6 poisons की and you're like कौन सा है, तो you probably go for digitalis purpura. Then you have the part of their names. उनके थोड़े their English names and their Urdu names. जैसे Aconite के अंदर there's Vita Zahir, Monkshood, Wolfsbane. Do you need to do them? Yes, you do. मेरे भाई ने मुझसे पूछा था कि इसका और नाम क्या होता है. Basically मुझसे Aconite नहीं पूछा था, मुझसे पूछा था Wolfsbane का तुम बताओ कि postmortem appearance क्या होती है. So if you don't know what Wolfsbane is, you won't be able to answer कि exact postmortem क्या होती है. Then we had the topic for I think corrosive poisons. Corrosive poisons again pretty simple. क्योंकि it's sulfur, hydrochloric acid, nitric, and hydrogen cyanide operating strong alkalis आ जाते हैं. जो major difference है दोनों के अंदर उनमें ये है कि I think acids are less rougher than alkalis. Alkalis are more rougher क्योंकि alkalis की absorption within the skin हो जाती है. ये पूछते हैं actually कि ज़्यादा बुरा क्या होता है एक strong alkali या strong acid. So the people usually go for the कि यार sulfuric acid हमने ज़्यादा पढ़ा है chemistry में तो वो sulfuric acid आंसर है. That's technically the wrong answer. सही है, the pH is still very low, it's still damaging. लेकिन जब आप acids like hydrochloric, sulfuric, nitric acid आते हैं किसी की बॉडी के ऊपर, they usually cause burnings immediately at the point. So जो acid होएगा ना, it doesn't go deep into the skin. Alkalis में this doesn't happen. Alkalis में it penetrates deep into the tissue. So this is a important point to remember. बाकी again corrosive poisons के अंदर the signs and symptoms corrosive poisons specific होते हैं. जैसे sulfuric acid के अंदर you have chalky white appearance of teeth and एक stiffness of abdomen होती है. So again these are specific symptoms, specific signs. क्वेश्चन में ये डाल सकते हैं. क्वेश्चंस वेग हो सकते हैं. सिर्फ एक स्पेसिफिक साइन या सिम्टम might be the difference between one year two answers. So basically BCQ बन जाता है rather than a multiple choice. So again, colorless, odorless, these are stuff that you need to remember क्योंकि some questions can just give you the fact कि acid is pungent smelling acid. If you don't know what acid is pungent smelling, you won't be able to answer that question. So the same formula applies here. The effect क्या है, the fatal period क्या है, signs symptoms क्या है. If there is a post-mortem present, तो आप post-mortem डाल देते हैं. If there is a treatment, तो you put treatment. Again, you don't need to remember every sign and symptom, just specific. The same goes for post-mortem. अगर बड़े-बड़े post-mortem की चीजें याद नहीं हो रही, तो छोटी-छोटी याद कर लो. कि color difference हो जाएगा, stomach की lining थोड़ी red हो जाएगी. Anything to keep it going. Treatment is similar for acids, but if there is a differentiating treatment, तो you'd go for that. Uh, After that, जो था वो stab wounds and lacerations, right? Stab wounds and lacerations, again, different topics. But I would ask you to do them together, like stab wounds, lacerations, and there's another, I think, एक और type of wound उनका नाम याद नहीं है particularly, but again, जो similar topics हैं, try to bunch them together so that it's easier. So stab wounds, very simple. Go for the definition and then उनकी different 5 वो होती हैं, I think depth, length, site of injury, margins. That's it. These are literally only differentiating points. सवाल भी यही आएगा कि यार बंदे को wound हुआ है and blade of the weapon की जो edges है ना वो fine edges है. So if you know the edge, you'll be able to differentiate. And the क्योंकि stab wounds and the second wound topic is very similar, so you apply the same formula there today. क्योंकि differences उनके ये होते हैं कि अच्छा depth में क्या है, length में क्या है. So basically ये 5 अगर strong stab wounds में होंगे ना तो तुम second topic के अंदर इसको basically opposite कर दो. So the opposite works through. Then you have again oxalic acid and carbolic acid. Special toxicology में similar symptoms हैं कि sign symptoms उनकी local and systemic हैं. Diagnosis, treatment और postmortem. क्योंकि I think carbolic acid और जो वो होता था oxalic acid उनकी there's specific postmortems, उनकी scalding appearance. There's a specific order to them. Carbolic acid में पूछ सकते हैं कि medical use क्या था carbolic acid की, क्योंकि कुछ लाइनें होंगी तुम्हारी slide में there's just one या two lines, but they end up being one viva question straightforward. So you're just like यार मैं skip कर दूँ ये line, लेकिन
if there is a line that says anything that's different from the rest of the slide, याद कर लो. जैसे carbolic acid के अंदर phenol marasmus is a slide that's there, जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछ लेते हैं अच्छा phenol marasmus क्या होता है, and if you skip that slide you're missing out. So then we have lacerations. Lacerations में you go for the definition. Then you go for types. Types में you have split, stretch, avulsion, tears, and cuts. The differences between them. Uh, उसके बाद after lacerations you had the topic for regional injuries and RTAs. So regional and RTAs are बहुत simple हैं, इनके सवाल आ चुके हैं compilation के अंदर present होंगे. So RTAs के अंदर you divide the topic into injuries to pedestrians, injuries to drivers, and injuries to motorcyclists. And try to, when you approach a particular topic, try to do it in the form कि तुम एक ladder case या फिर staircase या फिर whatever you want to call it, एक सेक्शनल अप्रोच कर. अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में तुम इंजरीज लो, क्योंकि हमारे पास इन स्लाइड्स में स्पेसिफिक बॉर्डर्स नहीं बने हुए कि यार मतलब इंजरीज टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर पीपल यूजुअली जस्ट रीड थ्रू द एंटायर स्लाइड, इनको ये फर्क नहीं पता होता कि ड्राइवर में कौन सी इंजरीज हैं, पैसेंजर में कौन सी इंजरीज हैं, रियर सीट में कौन सी इंजरीज हैं. सो when you're reading it through, try to differentiate one block with another block. So injuries to pedestrians में primary आ जाती है, secondary run over आ जाती है. ड्राइवर में स्टीयरिंग व्हील इंजरी आती है, जिसका सवाल हमेशा आता है पेपर के अंदर, हमारे पास भी रिपीट हुआ था. विप्लैश इंजरी इज अ वेरी हाई टॉपिक फॉर वाइवास. पूछते हैं कि उसमें विप्लैश इंजरी में कौन सी आपकी जो रूट होती है वो इफेक्ट होती है, नर्व रूट. Regional injuries may again classification depending on the state of dura, unconsciousness, depending on the extent of injury, and then you go for division in skull injuries and brain injuries. क्योंकि अब आप regional injury deal कर रहे हो तो you're dividing it into two different regions. So skull injuries में there are multiple fractures, then you have fractures of base of skull. ये याद सारे अगर बोलोगे याद करने तो करने पड़ते हैं, because forensics का mood नहीं पता होता आपको, so they can ask you anything depending on how your eye is. Brain injuries, then again, very easy topics. उनको तुम concussions, irritations, contusions and lacerations provide करते हो. Then you have theories of contractile lesions. मुझसे बारे में पूछा था कि Rawlings theory क्या होती है. So you kind of need to do all four. I think all four या five होंगी in total. So you need to understand the differences between them. It's not difficult. Just keep it simple for you. अगर अंग्रेजी नहीं समझ आ रही, just translate it to Urdu कि अच्छा यार इसके अंदर elasticity इस साइड से जा रही. They'll accept it to the point that you have a fair concept of what's happening. Uh, Blast waves and injuries to spine are very small topics. Lekin the same principle applies के blast waves के अंदर you have the definition की क्या होती है, अच्छा negative pressure क्या होता है, positive pressure क्या होता है. Instead of that, try to focus on damage to lungs, क्योंकि वो is the main subtopic within the blast के effects. You तुमसे पूछ सकते हैं कि blast lung क्या होता है, what are the features of blast lung. अगर blast हुआ तो damage to ears में क्या होता है. Injuries due to heat and cold में you have heat cramps, very straightforward के उसमें पूछ सकते हैं कैसे होती है, symptoms क्या है, treatment क्या है, mortality कैसी होती है. Heat exhaustion is a pretty fairly easy topic because हमने असली में होते हुए देखा है, we've been through some really hot summers, so you have an idea. But the real difference is कि heat exhaustion और heat stroke में क्या difference होता है. इसके सवाल आते हैं कि patient is प्रेजेंट कोलैप्स हो चुका है और ये इसके सिम्टम्स हैं, सो उसको हो क्या रहा है. सो इफ ही हैज sweating taking place, if he is cold, you go for अच्छा है जिसको heat exhaustion होगी, but if his skin is hot, there's no sweating, you go for heat stroke. बहुत छोटा डिफरेंस है, but that is where +1 और -1 का डिफरेंस होता है आपकी मार्किंग का. Thermal injuries में dry heat, moist heat, mechanical injuries, and then you have classification of burns जिसमें minor, moderate, major है. It's not any मतलब इसमें बड़ा concept नहीं है, really small concepts. Turpentines classification है जो I think हम year 1 से पढ़ते आ रहे हैं, first degree burn क्या होता है, second degree क्या होता है, the differences between all degrees of burns. Then I think तुम लोगों के CAT 1 में एक जो मसला था वो ये था कि age of death में postmortem lividity और rigor mortis कैसे देखते हैं. Heat injuries में age of burn आती है. So if you have a patient presenting with pus after burn, so it's pretty evident that
एक टाइम स्लॉट होती है. there's 1 2 3 4 5, there are 5 stages for aging of burns. तो उसके अंदर अगर रेडनेस है तो तुम बोलोगे अच्छा यार ये बर्न अभी हुआ है. अगर पस प्रेजेंट है बर्न के अंदर, यू प्रॉब्ली गो फॉर 36 to 72 hours. तो सेम इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रूजिंग अप्लाइज है. कि अच्छा ब्रूजिंग के अंदर अगर डार्क रेड कलर है, अगर येलो है, तो इतने घंटे हो गए. यू नीड टू नो द डिफरेंसेस ऑफ आवर्स उनके अंदर कि कितने होते हैं. देन एन इम्पोर्टेंट स्मॉल कॉन्सेप्ट इज पुगिलिस्टिक एटीट्यूड या बॉक्सिंग एटीट्यूड या फेंसिंग पोस्चर क्या होता है. यू नीड टू नो दैट क्योंकि दैट्स मेनली अ वाइवा क्वेश्चन. लेकिन 2 3 बार पेपर्स में भी आ चुका है कि बॉडी मिली है बर्न के बाद और उसका ये स्टेटस, सो व्हाट वुड यू कॉल इट. Electrocution and lightning में you divide the topic into types of electrical burns, जिसमें तुम्हारे पास contact, spark और flash है. Joules burn होता है and then Zenker's degeneration होता है. So that's the only thing you need to know in electrocution. Infanticide is a topic जो MCQ survivor दोनों में test होता है. So you need to know the differences between infanticide, feticide, neonaticide and filicide. And then causes के अंदर differences होते हैं acts of omission और acts of commission में. Then one of the least favorite topics है मेरा कैट टू का. इट्स डेड बॉर्न चाइल्ड. कि अगर एक बच्चा पैदा ही मरा हुआ है, ही डाइड बेसिकली इंट्रायूट्राइन डेथ हुई. सो वो तुम किस तरह देखते हो, तो उसमें तो आवाज मोटिस होती है, मैसरेशन होती है, ममिफिकेशन एंड पुट्रिफैक्शन. बस ये 4 चीजें, दैट्स इट. यू कैन गो इनटू द डिटेल्स बट ओनली डू द डिटेल्स दैट मेक सेंस टू यू. अब रिगर मोर्टिस के अगर अगर बेसिकली सवाल आए कि देयर इज अ डेड बॉर्न बेबी है and that baby has rigor mortis. So that is the only thing you need to go for an answer in that question, because you know कि rigor mortis delivery के अंदर सिर्फ 2 या 3 घंटे के अंदर होता है. Evidence of live birth at autopsy is a very detailed topic क्योंकि उसके अंदर external changes in skin, lungs. I skipped it honestly. We're lucky कि नहीं आया, but it has really small details. They can ask you, but I particularly feel like कि मेरे personal experience it was a pretty low yield topic. Then you have abandonment of child, concealment of birth, and SIDS जो sudden death infant syndrome होता है. और उसकी postmortem findings जो है they're really specific as to उसमें क्या करना है. Then you have starvation, hypothermia. You divide the topic of starvation into acute and chronic, fatal period and postmortem. Postmortem में external और internal differences होते हैं. So 3 तुम external याद कर लो, 3 internal याद कर लो. It's more than enough. Cold injuries में local और general में divide करोगे topic को. Cold injuries is a pretty straightforward topic. उसके अंदर इतनी खास detail नहीं है. But the rather important part is general cold injuries, जिसमें you have hypothermia. क्योंकि hypothermia के अंदर तो आपके पास signs and symptoms भी हैं, postmortem appearance भी है, external internal भी, and then you have the concept of paradoxical undressing, which you need to know कि वो होती क्या है. वो सवाल आया था, आई थिंक हमारी ईयर में भी आया था, पिछले उसमें भी आया था और वाइवा में भी पूछा था. बैटरी एंड असॉल्ट में डेफिनेशंस याद करनी है कि असॉल्ट, बैटरी और अब्यूज की डेफिनेशंस क्या हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन असॉल्ट एंड बैटरी. देन यू हैव क्लासिफिकेशन. बैटरी और असॉल्ट में 3 है. चाइल्ड अब्यूज होता है, एल्डरली अब्यूज है और पार्टनर वायलेंस है. पार्टनर वायलेंस मतलब आप अपने सिग्निफिकेंट अदर के खिलाफ जो वायलेंस कर. Then you have the concept of battered baby syndrome. इसकी classical features आती हैं, signs symptoms आते हैं. Battered wives आता है and shaken baby syndrome आता है. मतलब these are small things. लेकिन जैसे battered baby syndrome है ना, उसमें you need to know कि age bracket क्या है. क्योंकि हमारे पास इस सवाल आया था, I think जिसमें there was a 7 year का child. लेकिन battered baby is 2 to 5 years. So that particular answer does not apply to your question. तुम उसको अब्यूज या बैटरी क्लासिफाई करोगे rather than the battered baby syndrome. Police torture, very low yield topic. Honestly, पढ़ो ना पढ़ो is the same thing. अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, very low yield topic. The only differences you need to know is psychological torture में, क्योंकि बाकी सारे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. तुमसे अगर पूछ भी लें कि पुलिस टॉर्चर के अंदर हेलीकॉप्टर टेक्निक क्या है या एयर टॉर्चर क्या है, they're not difficult concepts to grasp. They're really small. If you want to skip it, you can skip it because it's not that important. क्योंकि ज़्यादा important आपके पास poisons की है, personal identity की है, types of injuries की हैं कि यार starship injury बन रही है तो वो किसके through हुई है. बाकी I think that's particularly it for the last week जो तुम लोगों ने किया है.
उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स आई डोंट नो तुम लोगों ने आज या कल क्या कवर किया, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. बाकी आई एम प्रीटी श्योर देयर क्वेश्चंस, so if you want to ask them, let's go ahead. या अगर कुछ नहीं समझ आया तो भी पूछा तो कोई पूछ सकता है. मतलब really even if you think your question is literally the stupidest question, go for it, क्योंकि forensics is easy in the sense कि अगर पढ़ रहे हो टाइम से तो मुश्किल नहीं है. नहीं पढ़ रहे मेरी तरह अगले आखिरी एक हफ्ते में देखो, लेकिन आखिरी एक हफ्ते में लोग कर लेते हैं, यू कैन डू इट, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस होता है. इफ यू कैन. हाउ टू डू पॉइजन्स, देयर इज अ लॉट, मिस्टर हसीब, हबीब सॉरी. सो देखो पॉइजन्स के अंदर यू डिवाइड द कैटेगरी इनटू कार्डियक, corrosive, वेजिटेबल एंड टूरो स्टीचिन अलग से, क्योंकि इन सब की देयर स्पेसिफिक अप्रोचेस, लेकिन द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम व्हेनेवर इट कम्स टू स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी. ये टॉपिक्स तुम साथ पढ़ो. I think personally start with cardiac poisons first, then go for vegetable poisons. उसके बाद go for corrosives. Corrosives का ना जिसके अंदर तुम्हारे acids आ जाते हैं. नहीं, not really. They don't have similar symptoms. Uh, unless you give me a specific example कि किसकी similar symptoms होते हैं, so I can clear up that concept for you. क्योंकि if you in plants सही है, so plants के अंदर we go for अच्छा plants is basically vegetable poisons, right? Because yeah, so vegetable poisons के अंदर you kind of need to know their weird names. बड़े अजीब नाम होते हैं, जैसे जमाल गोटा और वो गुंजी रेती, ये याद रखने पड़ते हैं क्योंकि मुझसे डॉक्टर इकराम ने पूछा था कि एब्रस वीकेटोरियस का दूसरा नाम क्या होता है. सो राइसिनस कॉमनस की तुम बात करो जो पहला वेजिटेबल पॉइजन है. सो द साइन, इफ यू वांट राइट दिस यू कैन, इफ यू डोंट तो it's fine. Signs and symptoms में bloody purging is an important sign. Copious and painful vomiting is an important sign. So bloody purging का literally मतलब ये होता है कि जो blood आ रहा है, you're not spitting it out, it's exploding out. जो exploding vomit होती है ना आपकी, that's bloody purging. या फिर जैसे आपको डकार आती है राइट, तो डकार के साथ ब्लड आ रहा है. एंड कोपियस एंड पेनफुल वॉमिटिंग अगर हो रही है पेशेंट को, यू नो इट्स अ स्पेसिफिक सिम्टम फॉर राइसेंस टॉन्सिस. क्रोटॉन टिगियम के लिए जमाल गोटा जो है ब्लिस्टर फॉर्मेशन है. सो इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर, देखो अगेन उसमें भी तुम्हारे पास वॉमिटिंग है, उसमें भी तुम्हारे पास पेन होएगा, बट स्पेसिफिक सिम्टम इज ब्लिस्टर फॉर्मेशन. सो अगर पेशेंट आ रहा है विद ब्लिस्टर फॉर्मेशन, you'd go for proton tachyon. If there is burning sensation present at anus, you'd go for proton tachyon, because ये दो जो signs है ना, they're specific symptoms for proton tachyon. Abrus precatorius के लिए जो signs and symptoms है उसमें तो आपस symptoms resembling viper bite है. ये exact सवाल है जो मुझसे मेरे वाइवा ने पूछा था कि what vegetable poison resembles a viper's bite. ये लिटरली डॉक्टर आई थिंक इकराम ने शायद टॉपिक पढ़ाया था, उनकी स्लाइड में एक लाइन लिखी हुई छोटी सी. सो अगर सिम्टम्स रिजेंबल वाइपर बाइट, if there is vertigo, you'd go for Abrus precatorius. These are specific signs and symptoms for that. Semicarpus anicardium जो मार्किंग नट है उसके अंदर तुम्हारे पास ब्रूस की रिजेंबलेंस है. ये सवाल पेपर में आता है कि ये हुआ है and the lesion appears like a bruise. So if it appears like a bruise, it is semicarpus anicardium. So technically they don't have similar symptoms unless you do the similar symptoms, क्योंकि वो तुमसे स्पेसिफिक पूछेंगे. अगर एक्जिमेटस अपीयरेंस है उसकी सेमीकार्पस है. आई होप इट क्लियर्स द कॉन्सेप्ट, क्योंकि आई थिंक इट शुड ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट. हाउ टू टैकल ट्रॉमेटोलॉजी. सो ट्रॉमेटोलॉजी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पर्सनली, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता तुम लोगों ने क्या क्या कवर किया, क्योंकि उसमें एब्रेजन कंट्यूजन बहुत सारी, लेकिन जहां तक किया है तुम लोगों ने कवर, उसके अंदर you had regional injuries and you had क्या बोलते हैं उससे RTAs. So I'll go over it again. Road traffic accidents में you divide the topic into injuries to pedestrians. Injuries to pedestrians के अंदर सब heading आती है primary impact injury, secondary impact injury, and then secondary injuries. Secondary impact and secondary are two different things. That's why there are three subdivisions within injuries to pedestrians. You need to know the difference between प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी होती क्या है, क्योंकि सवाल आता है कि ये इंजरी है और इसके अंदर तुम्हारी टिबिया और
fibula fracture. So what kind of fracture is it? So you know it's a bumper fracture. लेकिन bumper fracture की classification कहाँ होती है? It's primary impact, क्योंकि primary impact का literal मतलब ये होता है जो आपकी initial hit हुई है गाड़ी से. Try to visualize it. Traumatology honestly, अगर तुम लोग visualize, it's a little gory, लेकिन अगर तुम लोग visualize करो ना, it's easier. कि अगर बंदा खड़ा हुआ उसको गाड़ी लगी at the point of attack, accident होते हैं very common in Karachi RTS, very common. And it's a leading cause of young people की deaths around the world. ये भी पूछते हैं कभी कभी कि आरटीएस की इंपॉर्टेंस क्या है. सो प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी के अंदर ये हो गया कि यू नो कि इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट इम्पैक्ट. यू नो द कॉमन साइट फॉर फ्रैक्चर्स. देन यू नो कि what is the specific injury for primary, तो उसमें बम्पर फ्रैक्चर. सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी है जब they're depending on the center of gravity. So बहुत small concept है. You'd go for अच्छा victim is thrown off the ground. That's not the answer. Second, because वो secondary injury बन जाता है. Secondary impact injury depends on your center of gravity. So उस particular point से then you divide it into above the car, below the car, and then contact with windshield. और counter coup lesions यहाँ पे देखे जाते हैं. Secondary injury is कि जब the person now has fell to the road. So गाड़ी लगी, बंदा bonnet पे गिरा, प्राइमरी इम्पैक्ट हो गया, सेकेंडरी इम्पैक्ट हो गया, बंदा बॉनेट पे गिर गया. अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है तो ही फॉल्स ऑन द बम्पर. इफ इट ज्यादा है ही फॉल्स ऑन द बॉनेट. अगर कम है तो आई थिंक ही फॉल्स अंडरनीथ द कार. सेकेंडरी इम्पैक्ट इज आफ्टर ही इज ऑन द ग्राउंड. एनीथिंग दैट हैपेंस ऑन हिम, जैसे देखो गाड़ी लगी, there is a force that goes with it, right? You go flying. So any injury that is sustained in that flying, जैसे fracture, laceration, आपकी fracture हो गया, that is a secondary. Then you have run over injury, जिसके अंदर कभी कभी होता है कि बंदा गिर गया है, गाड़ी की स्पीड अभी भी कम नहीं है, गाड़ी की स्पीड still moves on and the car crushes the person underneath it. That is a run over. As in गाड़ी उसे पैर पे चढ़ गई. So that's how you divide it. चार phases में divide कर लो. Try to imagine those चार phases for injuries to pedestrians. Then you have injuries to driver. Injuries to driver में you have steering wheel injury, you have windscreen injury, you have whiplash injury, and you have injuries to lower limb and other. That's how you divide injury to drivers. कि ड्राइवर के अंदर पहले फर्स्ट इंजरी स्टीयरिंग व्हील हो सकती है ऑब्वियसली. देन यू हैव विंडस्क्रीन इंजरीज कि विंडस्क्रीन टूटती है, आपकी शीशा टूटा तो शीशे से क्या इंजरीज हो सकती है, जिसके अंदर आई थिंक बर्ड क्लॉ होता है. देन यू हैव व्हिप्लैश इंजरीज, वेरी कॉमन, बहुत 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 फेयरली इजी टॉप होता है, जिसके अंदर इनर्शिया इज बेसिकली, अगर फिजिक्स में से याद हो कि मूविंग फोर्स जो आगे जा रही होती है, इट हैज टू स्टॉप. लेकिन जब आपकी गाड़ी रुक रही है, योर बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन एज वेल. So the car has stopped, but you haven't. So that's why your body moves forward and then it comes back. That's a whiplash injury. जिसके अंदर बेसिकली आपके गले की नर्व रूट्स खिंच सकती हैं और आप नेक डाउन पैरालाइज हो सकते हैं. एंड देन यू हैव इंजरीज टू लोअर लिम्स एंड अदर एरियाज जो हाई यील्ड नहीं होता. तीन मेजर होती है, स्टीयरिंग व्हील, विंडस्क्रीन एंड whiplash injury. ये भी मैं बता देता हूँ कि फायर आर्म कैसे करें. देन यू हैव इंजरीज टू फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट, के फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट्स और उसकी सेम होती हैं ड्राइवर की, एक्सेप्ट फॉर स्टीयरिंग व्हील हटा दो, क्योंकि उसके अंदर भी आपके पास शीशा जा सकता है, उसके अंदर भी फ्रैक्चर हो सकता है, उसके अंदर भी आप विप्लैश इंजरी हो सकती है, क्योंकि ड्राइवर और जो पैसेंजर होते हैं दे कैन फेस सिमिलर इंजरीज. लेकिन स्टीयरिंग व्हील इंजरी इज स्पेसिफिक फॉर ड्राइवर्स. और रियर सीट, अगेन रियर सीट, अगर तुम लोगों ने ड्राइवर की इंजरी कर ली है ना, जस्ट रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीयरिंग व्हील इंजरी एंड अप्लाई बाकी सारी आगे, क्योंकि रियर सीट और फ्रंट सीट के अंदर वही एग्जैक्ट हुई होता है. डिफरेंस होता है इंजरीज टू मोटरसाइकिलिस्ट में, जिसके अंदर यू नीड टू रिमेंबर कि मोटरसाइकिलिस्ट का फ्रैक्चर एक स्पेसिफिक फ्रैक्चर होता है, रिंग फ्रैक्चर होता है, टेल गेटिंग होती है, और फ्रैक्चर्स ऑफ बेस ऑफ कल, वेरी कॉमन. दीज आर द थ्री फ्रैक्चर्स फॉर मोटरसाइकिल्स. रीजनल इंजरीज में डिवाइड द टॉपिक ऑन द स्टेट ऑफ ड्यूरा, उसके अंदर क्लोज्ड और ओपन है. Then you divide it on the duration of unconsciousness and glaucoma scale. That is not important. In my मेरा personal experience है, depending on the state of duration of GCS, it is not important. On the extent of injuries, you divide it into scalp injuries. कि अगर रीजनल इंजरी हुई है तो स्कैल्प के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसका कंफ्यूजन हो सकता है, ब्लैक आई हो सकती है, हीमाटोमा हो सकता है, बैटल साइंस. ये पहली हो गई डिवीजन. सेकंड डिवीजन हुई स्कल इंजरीज की, जिसमें तो आप पास फ्रैक्चर्स हैं ऑफ द वॉर्ड, which is the cranium, and fractures of the base of the skull. So that's how you divide skull injuries. Fractures of the word मैंने सारे किए थे, linear, depressed, commuted, torn. Just go for a mnemonic that you can form, वैसे L, D, C, B, G, D.
whatever is easier mnemonic. मैंने अपना mnemonic form किया था इसके लिए, so that's how it was easier for me to go for fractures of base of skull. पता होने चाहिए कि anterior का difference middle से क्या है, posterior से क्या है, ring fracture और hinge fracture very important to do कि उसमें difference क्या होता है. Then you come to brain injury. Brain injury के अंदर there are 5 topics. Cerebral concussion होता है, irritation होती है, contusion and lacerations होती है, and compression होता है. Hemorrhage तुम लोग I think cat 1 में cover कर चुके हो, so I think it's a repeating topic in cat 2. Uh, then you go for dating a hemorrhage कि अगर हम CSF जा रहे हैं और CSF में अगर हमें पिंक दिख रहा है तो हेमरेज को हम कैसे डेट करेंगे. सो ये लिखा हुआ है तुम्हारी स्लाइड्स में. आई थिंक एक चार्ट बना हुआ है छोटा सा, उस चार्ट के अंदर घंटे सारे लिखे होते हैं. ट्राई टू मेमोराइज दैट चार्ट इफ यू कैन. ब्लास्ट इंजरीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसके अंदर द मेजर कंपोनेंट इज डैमेज टू लंग्स एंड डैमेज टू लीड्स. बेसिकली ब्लास्ट लंग में क्या हो रहा है और डैमेज टू लीड्स में क्या हो रहा है. और आपकी कॉन्ट्रा ग्रुप की जो थ्योरीज है ना, जिसके अंदर तुम्हारे पास आई थिंक एक रसल्स थ्योरी है, गैगियोस होती है या रॉलिंग्स होती है. ट्राई टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन द एंड होपफुली यू शुड बी. दूसरा आई थिंक फरहाद का सवाल ये था कि हाउ टू डू फायर आर्म एंड इट्स इंजरी. इट्स अ वेरी डिटेल्ड एंड सीम्स डिफिकल्ट. फायर आर्म इंजरीज इज अ पर्सनल फेवरेट टॉपिक ऑफ माइन. मुझे बहुत आसान लगा था. अगर तुम लोग गेम्स खेलते हो ज्यादा, सो आई थिंक इट्स अ लिटिल इजियर टू अप्रोच द टॉपिक. नहीं भी खेलते तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि द रियल प्रॉब्लम इज कि स्लाइड्स बहुत बुरी है. फायर आर्म इंजरीज की चीजें बहुत स्कैटर्ड थी जब मैं कर रहा था. आई थिंक सेम स्लाइड्स तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं. सो फायर आर्म इंजरीज में डेफिनेशंस भूल जाओ कि फायर आर्म क्या है, बैलिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक क्या होती हैं, क्योंकि अगेन नॉट नॉट दैट इम्पोर्टेंट. टाइप्स ऑफ बुलेट्स अगर करनी है कर लो, बट अगेन वेरी लो यील्ड के यार जैकेटेड कॉनिकल बुलेट्स क्या होती हैं. बट कैन दे आस्क यू दिस इन वाइवा कि डम डम बुलेट्स क्या है, इंसिडियरी बुलेट्स क्या है, पूछ सकते हैं. सो इफ यू वांट टू डू देम इट्स रियली स्मॉल कंपोजर, यू कैन डू दैम. जिन लोगों ने गेम्स बहुत ज्यादा खेले उनके लिए ये टॉपिक रिलेटिवली आसान. द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू नो इन फायर आर्म इज नंबर वन टेल वैगिंग क्या होती है. जो वॉबलिंग होती है बुलेट, उसमें इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के बुलेट के साथ वॉबलिंग या फिर टेल वैग क्यों हो रही है, the major important point is कि the distance at which it does. तो first 500 yards में तो आपस क्या होगी, first 500 1500 में क्या होएगा, और wound की divisions क्या होगी, क्योंकि that's important in injuries कि यार exit wound और entry wound का difference. क्योंकि firearm injuries में ये बहुत ज्यादा है कि यार beveling हो रही है तो क्या होएगा. अच्छा अगर bullet अभी अंदर गई है तो क्या होएगा, अगर टम टम bullets गई हैं तो उसका क्या होएगा, अगर तो आपस incendiary bullets गई हैं तो क्या हो सकता है at the entry wound का. Then you come to the concept of rifling कि राइफलिंग क्या होता है, जिसके अंदर ग्रुप्स होते हैं. ये दिस इज बिफोर इंजरीज, दिस इज जस्ट फायर आर्म्स. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कवर इन फायर. टेल बैक फिनोमेना. राइफलिंग क्या होती है, राइफलिंग इज बेसिकली जो आपके पास स्पाइरल ग्रूव्स होते हैं. uh, तुमसे कार्ट्रिजेस मतलब पार्ट्स ऑफ राइफल्ड वेपन्स आई डोंट थिंक हम में से किसी से पूछे थे, अनलेस तुम्हारा वाइवा बहुत ही बुरा जा रहा है एंड यू हैव नो आइडिया, तो दे प्रॉब्ली आस्क यू कि राइफल्ड वेपन्स कैसे क्या होते हैं, बट यू डोंट नीड टू डू दैट. You just need to know the differences between lands and groups and कि caliber क्या होता है. So caliber will indicate you land to land. Uh, just slides, no book, no lectures. Lectures ऐसे थे कि यार जिनकी slides नहीं थी तो उनका लेक्चर देख लिया. जैसे डॉक्टर समीर, मेरे पास कार्बोलिक एसिड की वो नहीं थी स्लाइड, सो मैंने अपने कैट के लिए नहीं पढ़ा था वो टॉपिक, क्योंकि आई हैड नो आइडिया इट एग्जिस्टेड. मैंने अपने सेमेस्टर्स के लिए पढ़ा था, क्योंकि उस वक्त जब ऑफिशियल लिस्ट आई थी टॉपिक्स का, वाज लाइक अच्छा ये टॉपिक मिस हो गया. Slides are enough for semester if you're a smart student now. मतलब slides have always been enough since first year. Uh, Again depend ये करता है कि तुम slides को कैसे approach करते हो. अगर तुम रट रहे हो slides and it works for you, good on you man. मतलब लोग नहीं रट सकते slides. If you form your concepts and then base it off of them, you can do it as well. Further, Farhan, continuing your answer, and then it comes to gunpowder, and then it comes to projectiles. देन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंजिंग, ब्लैकनिंग एंड टैटू. ये सिर्फ मैं राइफल का बता रहा हूँ, ये शॉटगन्स का नहीं है, क्योंकि राइफल और शॉटगन्स आर डिफरेंट. सो यू जस्ट नीड टू, क्योंकि राइफल एंड पिस्टल्स आर द सेम थिंग, शॉटगन्स आर अ लिटिल डिफरेंट. सो ट्राई टू डिवाइड इट इनटू राइफल्स एंड शॉटगन्स. राइफल के अंदर तुम याद रखो सिंजिंग अप टू 6 इंचेस, ब्लैकनिंग अप टू 1 फीट होती है, टैटूइंग अप टू 3 फीट होती है. ये कॉन्सेप्ट बहुत बुरा लिखा है स्लाइड्स में. दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग. S for singeing, SBT याद रख लो. S is for
singeing in rifles up to 6, blackening is up to 1 feet, tattooing is up to 3 feet. इसके आगे वो जो बड़ा सा वो जो ब्रैकेट होता है ना इन राइफल्स लिखा। देन द कॉन्सेप्ट आता है कॉलर ऑफ विब्रेशन। क्या होता है बेवलिंग ऑफ बोन? एक्सटर्नल का बहुत अच्छा सवाल होता है, हमसे पूछा था बेवलिंग ऑफ बोन क्या होती है, कॉलर ऑफ ग्रीस क्या होता है। दैट्स इट फॉर। क्योंकि अभी तुम देखो सिर्फ जो इंजरीज कवर हुई ना इसके अंदर, तुमने सिर्फ कॉलर वाइब्रेशन कवर किया, बेबलिंग ऑफ बोन कवर किया है, एंट्री और एग्जिट वूंड का डिफरेंस कवर किया कि एंट्री वूंड के अंदर क्योंकि गोली राइफल होके जा रही है, क्योंकि राइफलिंग इज बेसिकली स्पिन होती है आपकी गोली, तो गोली स्पिन होके जा रही है तो वहाँ पर स्किन की जो अपीयरेंस है एंट्री पॉइंट पे वो भी थोड़ी स्पिन हुई भी तुम्हें मिलती है, थोड़ी मतलब लाइनें मिलती हैं उसके ऊपर उस वजह से, बिकॉज इफ समथिंग हैज रोटेटिंग मोशन टू इट व्हेन इट कॉन्टैक्ट्स स्किन, क्योंकि स्किन इलास्टिक है, पत्थर इलास्टिक नहीं, स्किन इलास्टिक है, तो इनिशियल जो पॉइंट होगी ना बुलेट टच होगी क्योंकि वो घूम रही है। तो हाँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो बुलेट घूम रही है ना, दैट्स व्हाई स्किन विल आल्सो मूव विद इट, लेकिन क्योंकि बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है वो घूमती नहीं रहेगी, इट विल पेनेट्रेट, लेकिन जो आपको एंट्री वूंड पे जो स्पिनिंग मिलती है ना दैट्स इंडिकेटिव, अच्छा यार ये राइफल की बुलेट। कॉइल ऑफ वाइब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स कि व्हेन द बुलेट स्ट्राइक्स द स्किन, बुलेट स्किन पे लगी, स्किन पुश हो जाएगी। देखो डोंट थिंक ऑफ द बुलेट के अंदर चली गई, जस्ट ट्राई टू स्लो दिस फिनोमेना डाउन। फायर आर्म इंजरीज में इमेजिन द बुलेट कांटेक्ट, जैसे मैंने जोहा को बताया कि ट्रॉमेटोलॉजी में ट्राई टू इमेजिन कि हाउ द इंजरी इज टेकिंग प्लेस, इट विल मेक इट इजियर फॉर। सो फायर आर्म्स के अंदर बुलेट स्किन पे लगी, अब स्किन पे लगी, देयर इज अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स, जाहिर सी बात है द बुलेट विल इवेंचुअली गो इनसाइड, ब्लीडिंग होएगी, बट उससे पहले की इंपॉर्टेंस क्या है? सो अब्रेजन, आई थिंक तुम लोग का टॉपिक है कैटू में एब्रेजन और कंट्यूजन क्या होती है, बट स्किन पुश हुई, अब स्किन पुश हो रही है, बुलेट अंदर जा रही है, इट्स स्टिल गोइंग इनसाइड, hasn't completely gone inside, it will stretch क्योंकि स्किन इज एन इलास्टिक स्ट्रक्चर, बिकॉज स्ट्रेच हो रही है और फोर्स ऑफ द बुलेट इज मोर देन द फोर्स ऑफ द स्किन बर्दाश्त करने की, जाहिर सी बात है बुलेट की स्पीड और जो उसका फायर है गन पाउडर से, इट मेक्स द रेजिस्टेंस ऑफ स्किन वेरी लो अगेंस्ट, दैट्स व्हाई बुलेट्स आर इफेक्टिव वेपन्स। सो व्हेन दैट स्ट्रेचिंग टेक्स प्लेस, एक पॉइंट आएगा कि वो स्ट्रेचिंग इतनी आगे चली जाएगी कि स्किन बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो स्किन फट जाती है, स्किन रप्चर्स और वहां पे एक होल बन जाता है, दैट्स इट, दैट्स योर कॉलर ऑफ एब्रेजन। यहाँ पे अब आता है कॉन्सेप्ट कि एब्रेजन किस चीज की असर है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ स्किन फटी है, यहाँ पे तो ये तो आपके पास स्टैब वूंड से भी हो सकता है। सो नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ राइफल, क्योंकि राइफल है तुम्हारी M4 AK-47 जो हमारी टेक्निकली नेशनल गन है, MP5 सब लेके घूम रहे होते हैं, इसकी जो बैरल होता है ना, बैरल बैरल के अंदर देर आर बुलेट स्ट्रेट नहीं निकलती, बुलेट के अंदर देर बैरल इज मेड इन अ वे वेयर देयर इज अ स्पिनिंग आर्किटेक्चर अराउंड इट। तो अगर तुम एक पाइप इमेजिन करो और उस पाइप के अंदर तुम अंदर से एक बेसिकली स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग जो पेन के अंदर एक स्प्रिंग होता है, जस्ट होल्ड दैट स्प्रिंग टू योरसेल्फ, यू विल सी कि इट्स स्पाइरलिंग। इफ यू पुट दैट स्प्रिंग सॉरी पेन की ट्यूब के अंदर, तो दैट इज बेसिकली हाउ अ बुलेट इज विद इन द गन बैरल। तुम लोग अभी करके देखना, तुम कर सकते हो बॉल पॉइंट पेन के साथ, जस्ट टेक द पेन आउट, स्प्रिंग देखो, यू विल सी कि अच्छा है स्प्रिंग के अंदर एक स्पाइरल मैकेनिज्म प्रेजेंट है, तो जब बुलेट उस स्पाइरल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी तो वो भी घूमती है। ये खूबसूरती होती है राइफल्स की वर्सेस पिस्टल्स। पिस्टल्स में आई थिंक राइफलिंग नहीं होती, इट्स जस्ट स्ट्रेट बुलेट, तो दैट पर्टिकुलर स्पिन विल कॉज रोटेशन, और उस रोटेशन की वजह से, क्योंकि अब रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, अब बुलेट बुलेट टच भी कर रही है, रप्चर भी कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम रोटेट कर रही है, उस रोटेशन की वजह से मार्जिन के ऊपर एब्रेजन, दैट इज कॉलर ऑफ एब्रेजन। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलर ऑफ एब्रेजन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इंपॉर्टेंस क्या है? इट्स इंपॉर्टेंस इज के इट कैन टेल यू द एंगल ऑफ द वेपन बीइंग फायर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट कि गोली किस एंगल पे आके लगी है। फरहान सॉरी तुम्हारा बीच में ब्रेक हो गया ये, बट शॉटगन पे आ जाओ। सो शॉटगन में टाइप्स ऑफ गन पाउडर इंपॉर्टेंट है, प्राइमर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ गन पाउडर में सिर्फ डिफरेंस याद रखना है कि ब्लैक गन पाउडर, स्मोकलेस और नाइट्रोग्लिसरीन में क्या फर्क होता है। बोर ऑफ अ शॉटगन की क्या डेफिनेशन होती है ये याद कर लो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बोर, दैट्स इट। स्ट्रक्चर ऑफ द शॉटगन जो है ना कि बैट क्या होता है और उसकी पैलेट्स ऊपर क्या होता है, अगर याद हो सकता है हो जाए, इट्स ब्रिलियंट। नहीं याद हो रहा, जस्ट रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ के
फेल्ट वैड या अंडर वैड का क्या काम होता है, प्राइमर का काम क्या होता है, जस्ट फंक्शंस। इफ यू कांट रिमेंबर द स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर याद हो गया तो इट्स ग्रेट। डिफरेंस आता है अनचोक्ड और फुल चोक शॉटगन। ये वाहिद आई थिंक फोरेंसिक्स का ऐसा है जहाँ पे मैथ सप्लाई होती है, क्योंकि एक्चुअल सवाल आता है कि एरिया ऑफ डिस्पर्जल क्या है बॉडी के ऊपर। सो अनचोक शॉटगन में एरिया ऑफ डिस्पर्जल इज इन इंचेस है, इज इक्वल टू वन हाफ टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द गन इन यार्ड। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ, मतलब वन हाफ 0.5 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड गन इन यार्ड्स। यार्ड में जवाब आता है। फुल चोक शॉटगन अगर है, अगर फुल चोक शॉटगन जो होती है, अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ अगेन ऑफ फुल चोक जो शॉटगन होती है, इसके अंदर यू हैव द डिस्टेंस इज वन थर्ड ऑफ डिस्पर्जन। वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों अलग अलग जगह पे लिखा हुआ था हमारी स्लाइड्स के अंदर, बट इट्स वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द गन एंड बॉडी। तो गन फुल चोक, ये लिखा आता है कि आपकी शॉटगन फुल चोक है या अनचोक होती है। सो अगर फुल चोक शॉटगन है और डिस्पर्जल का एरिया आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर्स, so then the distance of firing is going to be 8, one third of that. लेकिन this is only for full choke. Unchoked के अंदर it is 1.5 times the distance between the body and yards. Then you have back splatter phenomena कि वो क्या होता है? Angles at which projectiles hit the body is important, क्योंकि ये सवाल आते हैं कि अगर wound of entry rounded है तो फिर एंगल क्या हुआ? ट्राई टू सिर्फ चार है, इट्स नॉट दैट डिटेल्ड, देयर ओनली फोर। सो परपेंडिकुलर होता है, ऑब्लिक होता है, टेंजेंट होता है और साइडवेज। तो अगर यार वूंड पे की होल बन रहा है तो साइडवेज आएगा, अगर गटर शेप्ड वूंड है तो टेंजेंट, अगर ओवल है तो ऑब्लिक है, और अगर राउंडेड है तो इट्स परपेंडिकुलर। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ गन पाउडर ऑन हैंड इज नॉट इम्पोर्टेंट। बुलेट एम्बोलिज्म इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बेसिकली है बुलेट आई एओर्टा में गई, एओर्टा बहुत बड़ी वेसल है, इट इज ह्यूज, स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो वो एओर्टा के साथ साथ कहीं भी जाके भी लॉन्च हो सकती है, तो इसको हम बुलेट एम्बोलिज्म। टाइम फॉर अ वेपन इज डिस्चार्ज is not that important, क्योंकि उसमें डिटेल्स बहुत हैं कि पोटेशियम सल्फेट क्या है ये वो, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर देम। अगर कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि अगेन अगर हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा try to focus on the important concepts because those concepts are being tested in your paper. That's why I always recommend पेपर से पहले compilation कर लो। जो सवाल होते हैं कंपाइलेशन के जितने भी हैं, मतलब आई एम श्योर कि देयर सम क्वेश्चंस that just don't make sense at all, उनके आंसर्स नहीं दिए होते, कुछ पेपर्स होते हैं उनके आंसर्स नहीं है, still try to do those papers, try to find their answers. That's why I say अपने लिए 3 या 4 दिन दे दो, या 2 दिन दे दो पेपर से पहले टू ट्राई टू डू देम। जैसे अगर पेपर तुम लोगों का मंडे को है ना पेपर, सो बाय सैटरडे लाइक 4th सितंबर या 5th सितंबर, by Saturday personally try to just do your paper by Saturday। इन लोगों का संडे फ्री, संडे को just try to revise any concept जो समझ नहीं आ रहा। So I hope फरहान फायराम इंजरीज यहाँ पे समझ आ गया। नहीं आया तो you can always message me man, I'm available, so that's one thing. uh, what do we have to remember in organophosphate poisoning? uh, Scorpion and snake bite lectures, यार again importance is subjective depending on आपका ईयर में उनका मूड क्या है, क्योंकि फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट हमारे तो इंटरेक्शन ही नहीं थी, so they had no idea who we are। हम उनके लिए we're just literally voices on screens in cat 2, so they had no idea। so हमें भी नहीं पता था कि कौन से टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, बट snake bites and scorpion bites are really small topics। the only thing you need to know ना, that is of importance is कि scorpion bites के अंदर mechanism of action क्या होता है, कि वो सोडियम चैनल गेट होते थे, उसमें सिम्टम्स इस वजह से होते हैं। एंड व्हाट इज द टॉक्सिन कंपाउंड, जैसे तो आप पास एक्टिव प्रिंसिपल पॉइजंस में होते हैं, जैसे रेटिनॉल है, डिजॉक्सिन है, डिटॉक्सिन है, इसके अंदर यू नीड टू नो द एक्टिव टॉक्सिन या फिर एक्टिव मेटाबोलाइट्स के वो क्या होता है। दिस इज फॉर स्कॉर्पियन बाइट्स। You don't need to remember the family names, you don't need to remember कि इस फैमिली में क्या हो रहा है स्कॉर्पियन की। लेकिन फॉर स्नेक्स में आ जाती है तो आपस फैमिलीज। अब मसला है फैमिलीज के अंदर काइंड ऑफ गेट्स लिटिल वियर्ड बिकॉज़ यू आर लाइक यार मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, ये तो इतनी अच्छी इतनी खासी डिटेल्स है। ट्राई टू अगेन मेमोराइज द रियली इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि उसके अंदर पैरेट स्नेक है या वो उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको कोबरा है। इफ यू कैन वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो जस्ट रिमेंबर कि किस में क्या होता है। सो लैपिड्स जो होते हैं तुम्हारे
They make neurotoxins. ये लिख लो if you wanna write. Vipers जो होते हैं, they make hemotoxins. And जो तुम्हारे hydrophids होते हैं, they make myotoxins. So your question can come where the patient has symptoms of muscle weakness. He has facial paralysis. He has uh, coordination of muscles नहीं होती. लेकिन there is no bleeding. There is no कि blood बह जा रहा है wound से. So you go for myotoxins. With snake it is hydrophil. Hydro का मतलब होता है पानी के snakes होते हैं. Leopards on the other hand have neurotoxins. So अगर तुम लोगों की physiology अच्छी है, you know what neurotoxins do. कि न्यूरोटॉक्सिन के सिम्टम्स क्या होते हैं, देन यू नो कि द स्नेक दैट इज रिस्पांसिबल फॉर दैट. क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा था कि यार ये शॉर्ट फैंग है, उसके फैंग्स पोस्टीरियरली है. कर सकते हो यार, बहुत अच्छी बात है. नहीं कर सकते, जस्ट रिमेंबर न्यूरोटॉक्सिन्स एंड हाउ दोस न्यूरोटॉक्सिन्स हैव द पर्टिकुलर सिम्टमोलॉजी. क्योंकि आई थिंक सिम्टम्स मेंशन थे, नहीं तो मुझे याद नहीं. बट जस्ट ट्राई टू गो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन. और टॉक्सिन सिर्फ इन तीन में होते हैं. देन कॉम्पोजिशन ऑफ वेनम याद रख लो कि मोस्टली वाटर होता है उसके अंदर. पता नहीं, आई थिंक फॉस्फोलाइपेज A2 भी होता था. ट्राई टू रिमेंबर कि कम हो जाएगा. दैट्स इट. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू फॉर स्नेक बाइट्स. एंड मैं यार 1 सेकंड पानी पी के आ जाऊँ, फिर मैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का बता देता हूँ. सही. सो फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आई थिंक हमारा दिस वाज personally I think cat 3 का टॉपिक था rather than cat 2 का. But you don't need to remember alkyl or aryl groups. Just try to remember कि वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं. And प्रेजेंटेशन क्या होती है. सो सवाल ये आता है कि फार्मर है. सो इफ इट्स अ फार्मर, ये हमारा एक्चुअली केस सिनेरियो आया था सेमेस्टर के अंदर कि ये है और फार्मर है और उसके मुंह से थूक निकल रहा है. एंड देन ये है, कौन सा पॉइजन है. पहला सवाल ये था क्या पॉइजन है, क्या करता है. सो ऑर्गेनोफॉस्फेरस. सो इफ इट्स अ फार्मर, तो पेस्टिसाइड्स होते हैं. पेस्टिसाइड्स में ऑर्गेनोफॉस्फेरस इज प्रिवेलेंट. यू डोंट नीड टू रिमेंबर एल्काइल और एराइल ग्रुप्स उनके. mechanism of action is important कि how does organophosphates poison occurs. कि वो कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं. क्योंकि ये पूछते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आस्क यू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आफ्टर यू आइडेंटिफाई द पॉइजन. आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट नहीं किया तो क्वेश्चन 2 पे वो वाली बात है, वाइवा पे सब्जेक्टिव हो जाता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू चूज टू आंसर. ट्राई टू स्पीक एज लेस एज यू कैन, लेकिन रिलेटिव इंफॉर्मेशन. डोंट ट्राई टू बी लाइक हाँ मुझे सब आता है. क्योंकि अगर आता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि देन यू विल एज द वन. नहीं आता तो जस्ट स्टिक टू द relevant details. Mechanism of action, fatal period याद रखना है. Just try to make your divisions according to जो मैं कह रहा हूँ. It's this मतलब this is a personal approach from me. It worked. I don't know if it worked for you guys, लेकिन I think it's a very simplistic approach. So mechanism of action, fatal period, portal of entry के not important, लेकिन कैसे एंटर होता है तो यार वही है कि ओपन वुंड्स हो सकता है, इनहेलेशन, क्योंकि it's poison, right? So जाहिर सी बात है अगर मेरा वुंड खुला हुआ है and if it's liquid, if it's gas, so it will enter that place. क्योंकि the same with bacteria कि अगर wound खुला, अगर if I have a cut, bacteria and dust will enter the lesion. symptoms याद करने के symptoms कैसे होता है. symptoms लेकिन बहुत I think the important thing is to remember in symptoms is कि इफेक्ट कैसे होता है. क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जल्दी हुआ है या लेट हुआ है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले कौन सा रीजन जाता है, फिर क्या जाता है. सो आई थिंक सबसे पहले उसके मसल्स जाते हैं बंदे के, देन यू हैव वॉलंटरी मसल्स, देन आखिर में जाके वाइटल ग्रेन सेंटर का फर्क होता है. और इसके अंदर एक नहीं निमोनिक दिया हुआ था नो स्लट का, सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन एंड डेफिकेशन.
SLUD, स्लड, ये तुम याद कर लो। एडिशनल सिम्टम्स जो है उसका ये होता है कि गार्लिक लाइट ओडर होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की, स्किन एक्सपोज टू द पॉइजन इज रेड एंड ब्लिस्टर, क्योंकि अगेन वेरी स्पेसिफिक सिम्टम, वेरी स्पेसिफिक ओडर। जब तुम लोग कैट 3 पढ़ोगे तो उसमें जब कोकेन और एम्फेटामीन्स और जब सारे पॉइजन आएंगे सबकी स्मेल होती है, मैरिजुआना, एवरीथिंग हैज अ स्मेल एसोसिएटेड। So if you know the differences of smell and color, you already can identify the person. और अगर तुम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है तो टॉपिक becomes very easy. मसला जब आता है when identification नहीं होती, then you confuse क्या ये रेड कलर किसका था, ब्लू किसका था. Try to focus your attention on first identifying कि what it is. And usually it's not that difficult क्योंकि सवाल जल्दी नहीं मुश्किल नहीं आते. Out of I think 70 questions अगर तुम कर भी रहे हो, there are probably 10 that you don't know, but that's fine क्योंकि if you know 60 एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरे 60 सही हुए हैं, 10 गलत भी हो जाए तो दैट्स ओके मैन। मतलब इफ यू वांट टू एम फॉर 100, मतलब इफ यू आर वन ऑफ दोस किड्स के हाँ यार मुझे 100% चाहिए, देन देयर इज नो हार्म इन फाउल, इट्स ग्रेट। बट गलतियां इंसान से होती हैं एंड इफ यू कांट डू 100, ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड दैट कैन, मतलब दैट्स यूजुअली द वे टू गो अबाउट इट। लेकिन दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो इफ यू गाइस एग्री। देन यू हैव इट्स मस्कुलिनिक लाइक इफेक्ट्स। सही, कि वो क्या होते हैं मस्कुलिनिक में, ब्रोंकियल ट्री में क्या इफेक्ट होएगा, जीआई ट्रैक्ट में क्या होएगा, ये बहुत कॉमन है क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एक बार समझ गए हो ना क्या उनको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ जाओ, देन यू नो कि उसके इफेक्ट क्या होंगे। मस्कुलिनिक लाइक इफेक्ट्स तो दैट इज ओनली अगर तुम लोगों की गियर 1 की फिजियोलॉजी अच्छी, जो यूजुअली नहीं होती। कि अगर मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं कि मस्कुलिनिक इफेक्ट्स क्या होंगे जीआईटी के अंदर, फॉरगेट द पॉइजन। इफ यू नो कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर क्या करता था, उसका फंक्शन क्या है, देन यू विल बी लाइक अच्छा, इट हैज टू डू समथिंग विद सैलिवेशन, इट हैज टू डू समथिंग विद क्रैम्पिंग, इट हैज टू डू समथिंग विद डेफिकेशन। डोंट नो, खैर है, इट मेक्स इट अ लिटिल डिफिकल्ट, बट रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर। हार्ट में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। आईज में पैथोगनोमिक साइन है, आईज के अंदर अगर रेड टीयर्स निकल रहे हैं, क्रोमोजेनिक टीयर्स होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। ट्राई टू रिमेंबर दिस। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी और इनकॉन्फिडेंस होगा। सो हमारे पास जो केस आया था, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, लेकिन उसमें द पेशेंट हैड एक्सेसिव स्वेटिंग, उसको क्रैम्प्स हो रहे थे, उसको साइनोसिस था, कफ था, उसको सैलिवेशन हो रही थी। प्रीटी नॉर्मल सिम्टम्स है, मतलब ये तो किसी डिजीज के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बट ट्राई टू रिमेंबर द स्पेसिफिक्स कि क्रोमोजेनिक होता है, muscarinic like effects होते हैं, then you have its nicotinic like effects, जिसके अंदर cramping हो गई, then cause of death, so they can ask you क्यों गया ना phosphate poisoning में cause of death क्या है? So you're just like क्या मतलब sir, again every poison does something bad to the body, right? It causes something, so something जिसके muscarinic like effects भी हैं, nicotinic effects भी हैं और CNS को भी affect करता है organophosphate। Cause of death तुम्हारी is either due to respiratory paralysis, lung stop working, lung stop working, you'll die। सर्कुलेटरी अरेस्ट है, हार्ट स्टॉप्स वर्किंग, ब्लड पंप नहीं हो रहा, या फिर एडीमा ऑफ लंग्स इन ब्रेन, इतना एडीमा हो रहा है कि आपकी ब्रेन स्वेलअप हो गई, लंग्स स्वेलअप हो गए, दे नॉट एफिशिएंट इन व्हाट दे डू, सो दे डाई। सो डायग्नोसिस किस तरह करोगे? सो डायग्नोसिस इज बेस्ड ओवर टू थिंग्स, इट्स आरबीसी कोलिनेस्टेरेज और पी नाइट्रोफिनॉल टेस्ट, जिसको मैं पीएनपी कहता हूँ, पीएनपी टेस्ट होता है। एंड बाकी तो स्पेक्ट्रोमेट्री एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, नीड टू रिमेंबर लाइक 2 या 3 आउट ऑफ दिस। ट्रीटमेंट क्या है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की? नंबर 1, यू गो फॉर डीकंटामिनेशन। लिटरली दिस इज द आंसर फॉर हाफ ऑफ मोस्ट पॉइजन की। क्या करोगे तो उसमें हर जगह लिखा होगा डीकंटामिनेशन। डीकंटामिनेशन तुम सेलिन से कर सकते हो, बट डिफरेंस ये होता है बस बंदे, पहला सवाल ये होगा कि अच्छा हम क्या ट्रीटमेंट, जस्ट गो फॉर डीकंटामिनेशन। अच्छा डीकंटामिनेट कैसे करेंगे सर? जो अफेक्टेड कपड़े हैं उसके, फर्ज करो अगर मेरी, आई एम वेयरिंग अ फुल स्लीव शर्ट, राइट, मेरी लेफ्ट स्लीव के ऊपर पॉइजन पड़ा है, you'll remove my shirt so that that particular poison does not come in contact with my skin। सही। इमीडिएटली पानी है, पानी नहीं है तो फिर पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट नहीं है तो अगेन देन पेशेंट डेड एट दिस पॉइंट। सो अगेन जवाब नहीं आ रहा, अगर स्पेसिफिक याद नहीं है ना कि पोटेशियम मैग्नेट क्या कर रहा है, गो फॉर वाटर। सर नॉर्मल सेलिन से साफ करेंगे आप, क्योंकि नॉर्मल सेलिन का रिएक्शन नहीं होता, कुछ के अंदर स्पेसिफिक होता है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में। अगर तुम लोग पोटेशियम मैग्नेट याद कर लो, ब्रिलियंट, इट्स ग्रेट। देन तुम एयरवे का केयर करोगे जिसके अंदर वो ये ऑक्सीजन है, दैट्स इट। लेकिन ये जनरलाइज, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर एवरी पर्सन। द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इज कि तुम उसका एंटीडोट देते हो, व्हिच इज एट्रोपिन।
वो पूछ सकते हैं इसके अंदर कि एट्रोपिनाइजेशन क्या होती है। मुझसे मेरे वाइवा में पूछा था, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट का पूरा पूरा लिटरली पूरा पूरा स्टेशन था कि मैकेनिकल एक्शन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, एट्रोपिनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सो एट्रोपिनाइजेशन इज आफ्टर यू गिव एट्रोपिन, तो उसके बाद जो डायलेशन ऑफ प्यूपल्स होगी, ड्राई माउथ होएगा, फ्लशिंग होगी, दैट्स एट्रोपिनाइजेशन। सो रिमेंबर द एंटीडोट, कि अगर हम एंटीडोट दे रहे हैं इस ड्रग के लिए, इस पॉइजन के लिए, सो दैट्स एट्रोपी। एंड देन यू गिव क्या बोलते हैं उसे, पैम, आई थिंक पैम देते हो तुम, विच इज पेरोक्साइन, समथिंग पेरोक्टाक्सीन, मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही उसकी, समथिंग लाइक दैट, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंड वो करता है क्या है, जनरल मेजर्स छोड़ दो, नहीं याद हो रहे, इट्स फाइन, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द स्पेसिफिक्स, कि आपने उसको डिकंटामिनेट किया, आपने एट्रोपिन एडमिनिस्टर किया, आपने उसको पेराडॉक्सिन दी, ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे हैं आप, दैट्स इट। देन यू ट्राई टू गो फॉर पोस्टमार्टम साइंस, के पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑफ दिस पॉइजनिंग क्या होती है। पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ होता है। सो अगर एक बंदा ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग से मर चुका है, सो यू आर डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोस्टमार्टम साइंस। तो पोस्टमार्टम में एफिक्सिया, आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड इट, लेकिन अगर तुम लोग को एफिक्सिया आता है, दिस इज योर आंसर टू इट, क्योंकि पोस्टमार्टम क्यों आएंगे साइंस, so you go for the signs of asphyxia होगा। if you know the topic asphyxia very well, you don't need to be worried about it, because नहीं आता then you're in a problem, because फिर आप उसको एज एन एडिशनल चैप्टर पढ़ रहे हो इन अ टॉपिक जो टेक्निकली आपको ऑलरेडी आना चाहिए। सो एक्सटर्नल के अंदर उसके साइंस आ गए कि गार्लिक ओडर प्रेजेंट है, फेस साइनोस्ट है। इंटरनल के अंदर आ गए कि अगेन गार्लिक ओडर है, ब्लड स्टेन्ड है, लंग्स एडिमेटस हैं, ब्रेन में हाइपरीमिया है। और उसके आखिर में फाइनली दिस मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली एक्सीडेंटल होती है फार्मर्स के अंदर, यूजुअली एटलीस्ट पाकिस्तान में फार्मर्स आर नॉट दैट एजुकेटेड। सो देर इज अ लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी, ये हमको पता है कितना इस्तेमाल करना है नहीं करना। होमोसाइडल पूछ सकते हैं व्हाट आर द मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, सो जस्ट देयर थ्री, इट्स एक्सीडेंटल, इट्स होमोसाइडल, होमोसाइडल होता है कि आप किसी और को मारने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी काम करता है और इट इज वेरी इजिली अवेलेबल, एंड सुसाइड। So these three, that's the only thing you need to know organophosphate poisoning. Uh, अगर तुम लोग टॉपिक्स अपने डिवाइड कर रहे हो, साइंस एंड सिम्टम्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ डेथ, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस एंड इट्स मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स। ये लगता ज्यादा है, लेकिन ऑनेस्टली व्हेन यू अरेंज योर स्टफ अकॉर्डिंग टू दीज ना, तो इट मेक्स इट इजी। Habib, nomenclature of teeth is not my strong topics. Personal identity है ये, but from what I remember in nomenclature is कि differences होते हैं teeth के अंदर। Specifically, you don't need to remember कि उसमें infants और adults में, but क्या difference होता है, but क्योंकि वो common sense है कि बच्चों में कितने teeth होते हैं और adults में कितने teeth, but the important डिफरेंशिएशन इज के किस टाइम पे कौन से टीथ आते हैं, फर्स्ट अपीयरेंस कौन से टीथ की आती है। मतलब हमारे क्वेश्चंस आए थे दो तीन टीथ के ऊपर, वेयर व्हाट इज द फर्स्ट व्हिच टीथ इज द फर्स्ट, तो यू गो फॉर अच्छा पहला मोलर है, दूसरा मोलर है, क्योंकि एज वाइज ये चीज आती है, और आखिरी में एट द एंड ऑफ व्हेन यू आर 25 तक, 20 से लेके 25 तक या 23 तक, तो आपस विजडम टीथ के चांसेस होते हैं। सम ऑफ यू माइट हैव देम रिमूव, some of you don't have a problem for wisdom teeth, but up till 25 it can happen, so you need to remember किस age bracket में सबसे पहली appearance क्या होती है tooth की। डिफरेंसेस ऑफ टूथ, जैसे वो मिल्क टीथ ऐसे होते हैं, क्राउन्स में ये है, उसमें चार है, इसमें तीन है, करना है कर लो। बट पर्सनल आइडेंटिटी में ज्यादा जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो है एज डिटर्मिनेशन, कि एज डिटरमिन कैसे करनी है, डैक्टिलोग्राफी है विच इज फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग कैसे करनी है, एंड यू कैन गो फॉर बोन्स की जो वो होती है, दैट्स इंपॉर्टेंट। लगता है दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें फीमेल मेल की मैंडिबल्स में डिफरेंसेस होते हैं, बट अगेन यू डोंट नीड टू रिमेंबर सेवन डिफरेंसेस, यू नीड टू रिमेंबर टू, कि ब्रॉड है, थिन है, स्टफ लाइक दैट, मेक इट इजियर फॉर योरसेल्फ। और नोमेनक्लेचर ऑफ टीथ में आई डोंट नो इफ इट्स डायरेक्टली पार्ट ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ टीथ, लेकिन उसमें एक तीन या चार मेथड्स होते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग पीपल्स एजेस या पीपल्स वो, उसमें बॉयल्स मेथड होता था और दो तीन और, यू नीड टू रिमेंबर दोस मेथड्स, एंड यू नीड टू रिमेंबर यू नीड टू रिमेंबर एक तो वो तीन मेथड क्या है, वो तीन मेथड किस एज ब्रैकेट की अप्लाई करते हैं। सो आई थिंक बॉयल्स यूज्ड टू बी फॉर लिटिल चिल्ड्रन,
क्योंकि उनकी दांतों के ऊपर आई थिंक 3 या 4 लाइनें बनी होती है, दैट्स हाउ यू एबल टू टेल के एज डिटरमिन तुम कर सकते हो उससे। बाकी जो मेथड्स होते हैं उनमें से एक होता है जिसमें तुम बिल्कुल ग्राइंड कर देते हो टीथ को, एंड वन इज जस्ट यू पिक इट ऑफ डेड बॉडीज। सो अगर बंदा मरा हुआ है, ही इज डेड, या फिर फर्ज करो तुम्हें एक मम्मी मिली इजिप्ट के अंदर, आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यू लाइक ब्रिलियंट भाई, बहुत बहुत नोट छप रहे हैं हमारे पास, एंड यू गो, लेकिन इट्स नॉट अ लाइव पर्सन, ही इज बीन डेड फॉर लाइक 300 400 years. So what particular method will you apply there? ये तो बस exactly लिखा हुआ है कि you use this method in dead people to make identification easy. It's pretty good. Uh, यार, forensic cat notes useful in forensic top drive. Honestly, I did not use them. मैंने अपने बनाए थे और मैंने अपने स्लाइड से ही बनाए थे. It took me पेपर से, मैं honestly I don't recommend this to anybody. मैं पेपर से 8 दिन पहले, एक हफ्ता पहले पढ़ाई शुरू की, एंड आई ऑलरेडी न्यू कि फ्रेंड्स का बहुत बुरा सीन है, क्योंकि कैट वन कुछ लिटरली कुछ समझ नहीं आया था। कैट वन आई थिंक इज पर्सनली माय वीकेस्ट आउट ऑफ ऑल थ्री, क्योंकि उसमें लॉज और पोस्टमार्टम लिमिटेड थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैट वन और कैट थ्री ओवरलैप करते हैं एक से बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब देयर आर टॉपिक्स कैट थ्री के जो कैट वन में से होगा, तुम कैट वन में नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो तो कैट थ्री के कुछ टॉपिक्स विल बी जस्ट अ ब्रीज हो, और कैट टू के थोड़े मतलब फॉरेन से थोड़ा इंटरलिंक्ड है। लाइक कैट थ्री पढ़ते तुम लोग कहोगे यार इससे बेहतर था ये टॉपिक हम कैट वन में पढ़ लेते, क्योंकि वहाँ की फ्लो नहीं है, वाइब नहीं बन रही, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन जो भी होती है उसको हमने पूछा था उनसे, जो भी फीडबैक, सॉरी रिकमेंडेशन नहीं, कि ट्राई टू ऑर्गेनाइज टॉपिक्स मोर इन अ वे। तभी आई थिंक इन लोगों ने तुम्हें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कैट थ्री में टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा दिया, बिकॉज इट मेक्स मोर सेंस कि आप एक पॉइजन के साथ ही पढ़ा रहे हो, rather than you're teaching it in a, बस आगे जाके आपने डाल दिया कोकेन और एम्फेटामिन के साथ। पढ़ने पढ़ लो, if they're helpful for you to definitely man use them, but I personally did not use them at all. बाकी किसी को कुछ पूछना है, anything, even if you failed cat 1 man, yeah, even if you got a C neg, I'm not gonna judge you. मैं मेरे भी एक दो C neg आ चुके हैं, as long the most simplistic answer for you getting a C neg या pass या failing ना is simple. अगर C neg आया ना man, at you passed, right? मतलब when it comes, this is just mentally preparing you. If you get a C neg in cat 1, don't worry, you've passed. You know, you haven't failed. You're lucky. आप पास हो गए, बहुत अच्छी बात है. If you failed cat 1, a little worrisome, honestly. But remember, fail होते हुए भी आपको कोई परसेंट तो मिलता है. So 55% is the passing in Zautin, right? 55 or 56% is C neg. So even if you fail, you probably got a 54, a 48, a 38, a 22. But again, failing is, it takes effort for you to fail itself. पर्सनली अगर तुम लोग मुझसे कहो टेस्ट मुश्किल होते हैं, यार फोर्थ ईयर तक आगे ना टेस्ट मुश्किल नहीं होते, हम पढ़ते नहीं है, दैट्स व्हाई आई फील लाइक के टेस्ट मुश्किल होते हैं। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू मी। मैं कोई स्टेलर स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं वैलेडिक्टोरियन नहीं हूँ, आई एम अ प्रीटी एवरेज स्टूडेंट जो बस पढ़ लेता है, एंड आई एम नेचुरली लिटिल स्मार्ट, सो इट कम्स इजियर टू मी। सो जो लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़ते हैं, मैं वो एक हफ्ते में करता हूँ। दिस इज नॉट ब्रैगिंग, यू डोंट नीड टू फॉलो दिस, बट इफ इट टेक्स यू टाइम एंड एफर्ट, प्लीज गिव टाइम या एफर्ट टू योर सब्जेक्ट्स, इट विल बी इजियर ऑनेस्टली। पहले हफ्ते टॉपिक पहले हफ्ते में कर लो ना, इट्स ब्रिलियंट, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक all you need to do is restructurize this information कि यार मैं टॉक्सिक, जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो ट्रॉमेटोलॉजी एक साथ पढ़ो, टॉक्सिकोलॉजी एक साथ पढ़ो, पर्सनल आइडेंटिटी एक साथ पढ़ो, दैट्स व्हाई योर टॉपिक्स विल मेक सेंस। वो एक नेचुरल जेलिंग हो जाएगी तुम्हारे टॉपिक्स की। कैसे तुम आरटीएस पढ़ोगे, उसके फौरन बाद तुम रीजनल इंजरीज पढ़ोगे, सो यू ऑलरेडी हैव अ कॉन्सेप्ट कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या हो रहा है, यू ऑलरेडी हैव अ कॉन्सेप्ट के फायर आर्म इंजरीज में क्या हो रहा है, तो अच्छा सही है यार। तो फिर तुम बोलोगे अच्छा फायर आर्म इंजरीज है, वो ये डिफरेंसेस हैं टॉपिक्स में, बट अगेन वूंड वूंड है, ब्रूज ब्रूज है, कंट्यूजन कंट्यूजन है, एब्रेजन एब्रेजन है, दोस थिंग्स विल नॉट चेंज। ओनली डिफरेंस इज की टाइमिंग्स चेंज होंगी, अगर गन का कोई हिस्सा है, ऑयल है, ग्रीस है, वो किसका है, दैट्स इट। तुम लोग माइक इस्तेमाल कर सकते हो, पता है अपना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि टॉपिक्स लो यील्ड फॉर विच कैट, कैट 1 कैट 2। हबीब का आई थिंक ये सवाल क्या 2 में आई थिंक यार लो यील्ड अगर तुम पूछ रहे हो, सो दैट्स स्कॉर्पियन बाइट्स एंड स्नेक बाइट्स। पर्सनल आइडेंटिटी में नोमेनक्लेचर ऑफ टीथ लो यील्ड है, बट अगेन लो यील्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो टेस्ट नहीं होता, उसमें लिटरली जो 4 लाइनें जो मैंने बोली है ना तुमसे, बॉयल्स मेथड की और उसकी, चलो गेम्स, अगर जो 4 स्पेसिफिक चीजें, बॉयल्स मेथड, वो मेथड, एक बनते का नाम आई थिंक बिग गर्डल है, या फिर समथिंग्स मेथड, वो याद करने, देन दे बिकम रियली स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
So as of war, there's nothing low yield topic. It's just low yield substance. जैसे organophosphates के अंदर you can do a 50. I'm pretty sure firearm engineers के I think 3 slides हैं, 1, 2 and 3. They add up to like 80 slides at this point. लेकिन उस 80 slides में से your job is to differentiate what's important and what's not important in the 80 slides. तो मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ कि जैसे गन के पार्ट याद करना जरूरी नहीं है. नहीं आते ना, दैट्स फाइन. अगर पेपर में आ भी गया, दैट्स वन क्वेश्चन एट मैक्स मैन. इफ यू नो द रेस्ट ऑफ द टॉपिक 98% वेल, यू गुड टू गो. नहीं आता पूरा टॉपिक, अगर तुम्हें बेसिक इंजरीज ही नहीं आ रही कि यार अगर बोन राउंड बन रहा है तो उसमें कौन सी, देन यू मिस्ड अ मेजर कॉन्सेप्ट देयर. कि एंड इट्स मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब यू मिस्ड अ मेजर पॉइंट देयर. जैसे हमारा जो वाइवा था इसके अंदर, जब उन्होंने पूछा था व्हिच poison has symptoms like a viper bite, a lot of people couldn't answer that question. I did क्योंकि I remembered उस slides में मैं notes बना रहा था, so I just made a bold, जो होता है word पे जाके bold कर देता है, symptoms resemble like viper bite, तो वो बात बस दिमाग में बैठ गई जाके. A lot of people just read over it क्योंकि again हमारी slides are made in a way you just read over it completely. So that's the part where it took me time. It took me like I think two or 2.5 days just to make my notes and to structure them. Making is a whole different concept. कि आप copy paste कर रहे हो, then restructure them according to आप जिस तरह पढ़ रहे हो. I restructured them according to how I studied it. I structured according to traumatology एक जगह पे है, firearm injury एक जगह पे. अपनी स्पेसिफिक क्या चीजें बोल्ड करनी है, कौन सा, जैसे कॉलर ऑफ एब्रेजन, कॉलर ऑफ ग्रीस, बॉयल्स मेथड, डैक्टिलोग्राफी में तुम पढ़ोगे कि सबसे कॉमन प्रिंट क्या होता है, अनकॉमन प्रिंट क्या होता है. अच्छा, इस प्रिंट की खासियत क्या होती है, छोटी छोटी बोल्ड पॉइंट्स. गार्लिक लाइक वोटर है, इसको बोल्ड कर दिया. सो इन अ वे वेयर इट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द. बाकी कोई और सवाल है, एनीथिंग मैन एट दिस पॉइंट आई एम कंफर्टेबल टू आंसर. बाकी अगर नहीं है, नहीं पूछने, इट्स फाइन. मेरा नंबर आई थिंक कंजा के पास है, यू कैन टेक दैट नंबर. एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्राइवेट पे, तो दैट्स फाइन एज वेल. बट दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Thank you so much, Ameem, for this session. We really appreciate it. So we have to wrap it up, and if you guys have any other topics, we can have another session, or we can request for videos as well. Thank you, Ameem. जहां तक वीडियोस है, आई थिंक मेरी कंधा से बात हुई थी. आई थिंक वीडियोस डोंट मेक सेंस टू मी क्योंकि अगेन जैसे मेरे पास ये जो सवाल आए ना, आई आई कांट फंक्शन टर्न माई सेल्फ टर्न दीज आंसर्स इनटू वीडियोस बेसिकली, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर लाइफ भी होते हैं. टॉपिक्स यस आई कैन हेल्प यू विद दैट. दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ फर्स्ट वीक कवर किए थे, लेकिन आई थिंक जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और नोमेनक्लेचर ऑफ टीथ आई थिंक ऐड हो गए. सो that's also there. So if you want to do this week's topics, let me know. I'll try to find some time. Next week I'm a little busy because मेरा अपना टेस्ट है अगले हफ्ते. लेकिन probably Sunday को I think I'll be able to do next week's topics, which is still relatively close to your papers, right? Yeah, क्योंकि yeah, तुम लोग का sure. 6 को है. मतलब जो भी है, बाकी जिन लोग अगर प्राइवेट पे पूछने, you can always मैसेज में नहीं समझ आ रहा प्राइवेट पे, तो गूगल मीट का हमें कॉल कर लेंगे. वो मसला नहीं. Hopefully this helps, man. Hopefully this made some sense. If you, even if it didn't, if you think I was too fast, you can ask me again. एक particular topic को किस तरह approach करना है, I'll let you know. There's no problem in re-asking the same question, as long as this helps. Hey, that's it, man. Guys, take care. Good luck. Allah Hafiz. Allah Hopefully you get Hafiz. good Cat Thank 1 you. grades.